Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is psychological aspects of pain. Before starting the deep concept of pain, we discuss an example of a patient. Mrs. H was an Pathan lady married into a Punjab family. In the third years of her marriage, Mrs. H developed pain in her upper jaws. She initially used household remedies for a few days without any relief. She then saw a dentist who advised a tooth extraction of the third left upper molar, which was decaying. She experienced temporary relief, but the pain persisted and started to eradicate toward the left ear and eye. The dentist gave her short course of paracetamol, aspirin, and mefenic acid, but nothing worked. She then referred her to the eye and ENT specialist. No abnormalities were found, and she came home with prescription of more painkiller. Many months passed, yet Mrs. H was not relieved of her pain. She then saw a physician who discussed her pain in greater detail. Mrs. H described her pain as dull and disgusting. The physician then asked about the symptoms that were associated with her chronic pain in the jaws. Mrs. H readily expressed that she has had disturbed sleep and change in appetite and has become irritable and anger. The sensitive physician asked her about her domestic circumstances and personal life. He found out that Mrs. H had a difficult mother-in-law and a husband who did not find Mrs. H attractive anymore. Mrs. H broke into tears during the interview and told the doctor that she was fed up with life and often wished for death. A detailed assessment revealed a diagnosis of depressive disorder. Mrs. H was counseled and placed on amitriptyline, a type of antidepressant, for 6 months. The doctor involved Mrs. H and the family in the care plan to mobilize emotion and social support for Mrs. H. Within 6 weeks, Mrs. H pain was gone and she was symptom free at the end of the 6-month period. She then managed to form a fairly loving relationship with her husband, and a relationship based on mutual respect and healthy communication with her mother-in-law. As we discussed this case, एक जो औरत थी वो एक पेन के साथ थी, लेकिन इसकी जो पेन थी वो शिफ्ट हो रही थी, वो इसके टीथ पेन से शुरू होके ENT की तरफ चली गई. अब जो पेन किलर है उसे रिलीव नहीं दे रहे, उसे किसी भी मेडिसिन से असर नहीं हो रहा, जबकि पेन की जगह और नेचर चेंज हो रही है. तो इस सिंपल सी एग्जांपल से जो चीज़ हमें समझ लगती है वो ये है कि पेन इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अ स्पेसिफिक सेंसेशन. यानी जो पेन है ये सिंपल एक सेंसेशन नहीं है, ये कम्बिनेशन है किसका, परसेप्शन का और बिहेवियरल एक्सपीरियंस का. यानी अगर हम परसेप्शन को डिटेल में डिस्कस करें कि परसेप्शन होती है सेंसेशन प्लस मीनिंग्स. यानी कि पेन अगर हम सिर्फ सेंसेशन को लेते हैं तो ये परसेप्शन नहीं होगी, जबकि ये कम्प्लेक्स परसेप्शन है. यानी पेन जो है वो ये परसेप्शन है, नॉट अ सेंसेशन. यानी परसेप्शन मीन कि पेन को सेंसेट करने के बाद कोई मीनिंग दिया जाता है और उस मीनिंग के अंडर जो बिहेवियर एक्सपीरियंस पेशेंट करता है वो पेन को एक कम्प्लेक्स प्रोसेस में कन्वर्ट करता है. तो हम यहाँ ये बात क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो पेन है सिंपल एक बॉडी जो डिस्कम्फर्ट नहीं है, जबकि ये एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट भी है.
और इसको समझने के लिए हमें जिन चीज़ों पे गौर करना पड़ता है, जो फैक्टर हमें डिटरमिन करते हैं, वो है उसमें पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री है कि पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या है इस पेन से रिलेटेड। उसके अलावा जो वो मीनिंग्स दे रहा है उस सिचुएशन में, उस अपने स्पेसिफिक डिस्कम्फर्ट को, वो क्या है, और इस स्पेसिफिक सिचुएशन में पेशेंट का माइंडसेट क्या है, जब वो पेन फील करता है उस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, उसका जो सेंसरी नर्व पैटर्न क्या है, और उसकी फिज़िकल स्टिमुलेशन क्या है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट डायमेंशंस हैं पेन की। तो पेन जो है वो सिंपल एक बॉडी सेंसेशन नहीं होती, ये एक कम्बिनेशन होता है बिहेवियर और परसेप्चुअल प्रोसेस का, जो दो तरह से अफेक्ट करता है, एक फिज़िकली, एक साइकोलॉजिकली। इसका जो साइकोलॉजिकली अफेक्ट है वो अनप्लेजेंट फीलिंग है, और जो कॉग्निटिव डायमेंशन है वो पेशेंट का रिएक्शन है कि पेशेंट किस तरह रिएक्ट करता है उस पेन की कंडीशन में, और वो उस पेन की कंडीशन को से फ्री होने के लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करता है, और उस स्ट्रेटजीज के दौरान उसकी मेंटल कंडीशन क्या होती है। अब जो फैक्टर, इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो पेन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेन की इंटेंसिटी क्या है, पेन कितनी शिद्दत से है। उसके अलावा वो अपनी इस पेन को क्या मीनिंग्स दे रहा है कि ये क्यों हो रही है, इसकी क्या वजह है, इसका क्या मैकेनिज़्म है, इसके पीछे क्या थॉट्स हैं। और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो पेन की लोकेशन है, जो हमारी डिफरेंट बॉडी लोकेशंस हैं वहाँ पे पेन की सेंसिटिविटी और उसके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। अब पेन जिस लोकेशन पे हो रही है उस लोकेशन पे उसकी सेंसिटिविटी लेवल क्या है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पर्सनैलिटी ट्रेड है। कुछ लोग होते हैं जो पेन को बियर कर लेते हैं इजीली, कुछ उसको एग्जैजरेट करते हैं, तो पेन को बाज़ लोग सर पे सवार कर लेते हैं और उसको डिफरेंट जो स्टिग्मा है उस पेन से रिलेटेड वो अटैच कर लेते हैं, कुछ उसको इग्नोर करते हैं, कुछ जादू टूने और घरेलू टोटकों की तरफ चले जाते हैं, कुछ सीरियस मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की पर्सनालिटी पे। फिर उसके अलावा पेशेंट का इन्वायरमेंट कैसा है, पेशेंट की साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, पेशेंट की वर्क प्लेस कैसी है, पेशेंट की कोई पास साइकेट्रिक हिस्ट्री तो नहीं, उसकी कल्चरल सेंसिटिविटी कैसी है। अगर हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द देखें तो सेम पेन डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट सब कल्चर में, डिफरेंट वर्क प्लेस पे, डिफरेंट वो हाउसेस में, होम सेटिंग में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं पेशेंट के। तो पेन को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो उसके कंटेंट हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो अहम चीज़ है वो पेन की इंटेंसिटी है। जो पेन है इसमें acute pain, subjective experience of acute pain is distinctly unpleasant. The emotional content of such pain can be judged by the description used by the sufferer. जो acute pain वो जो एक इंसान पर्सनल फील करता है उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि वो क्या फील करता है, उसमें उसका बोरिंग, स्टकनेस, डल, डिस्कास्टिंग इन केस ऑफ, जैसा कि हम अभी ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं मिस्टर एच का केस, आर फ्यू ऑफ द वर्ड यूज इन एक्सप्रेशन ऑफ द पेन while the sensory word communication are somatic sensation that can be a last vaguely located to part of the body. The emotional word bounding, throbbing, terrifying, killing do not point to a specific region. This description and emotional instant anxiety is an other correlate of this kind of pain. जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि वो पेन को एज ए सेंसेशन नहीं ले रही, जबकि उसके साथ उसकी इमोशनल कि वो हेट कर रही है पेन से अपनी ज़िंदगी को अजीरन महसूस कर रही है, जबकि पेन का लेवल वो नहीं है जिस लेवल तक उसके इमोशनल रिएक्शन है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि फीलिंग ऑफ अ इम्पेंडिंग डिस्ट्रेस एंड ड्रीड,
Patients with repeated episode of acute pain often have trait of anxiety in their premorbid personality. They may require more analgesic medicine after surgery than other patients. Relief of anxiety by employing reinsurance, instilling a sense of control and the use of anti-anxiety medicines and painkillers. यानी कि पेशेंट जो है वो एक मामूली सी पेन के साथ उनकी रेशो देखता है कि वो साइकोलॉजिकल कितना पेन में है और फिजिकल कितना पेन में है। इन दोनों का जो प्रपोर्शन है वो शो करता है कि जो पेन है ये साइकोलॉजिकल पेन है या ये फिजिकल पेन है। उसके अलावा जो क्रॉनिक पेन है उसमें क्या होता है कि वेरियस साइकोलॉजिकल abnormalities हैव बीन डिस्क्राइब इन पेशेंट विद क्रॉनिक पेन। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो काज एंड इफेक्ट है। रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉनिक पेन एंड एसोसिएट साइकोलॉजिकल मॉर्बिडिटी रिमेन्स टू बी established. Study has shown presence of clinical depression in over 75% of patients with chronic lower backache. A change in the form of constant preoccupation with the pain, seeking repeated medical checkup and radiological and laboratory investigation, often just for reassurance, in commonly seen among such patients. The chronic pain attain a central position in the sufferer's lives. He and she lost interest in extracurricular activities, social and intellectual and spiritual activity, and abilities decrease. Patient of chronic pain often seems to lose interest in family and friends, while their dependence on them for physician and emotional support increase. Loss of job, financial worries, and substitutional hospital bills worries the already grim pictures. Poor self-esteem, a state of boredom and unhappiness, follow as a prelude to severe depression, which can at times result in deliberately self-harm or suicide. Disturbance of sleep, change in appetite, and undue irritability are often seen in patients of chronic pain. With physical symptoms and psychological symptoms, the other problems also arise. For example, loss of libido, social withdrawal, also seen in pain with psychological distress. And other than psychogenic pain, when a patient cannot specify the specific point and specific nature of the patient pain, so we doubted about the organic and psychological pain. Psychological pain जो है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसकी सिमिलरिटी। ऑर्गेनिक पेन में जो अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं शामिल तो उसमें सिमिलरिटी होती है। पेशेंट जो है वो सेम पैटर्न में जो है वो पेन को डिस्क्राइब करता है, जबकि इन साइकोजेनिक पेन देयर इज़ अ proportion of patient where pain and association symptom do not fit any of the non-psychiatric morbidities. The term used for such patient in psychogenic pain disorder, and it has its own diagnostic criteria. The pain in these cases does not originate in response to a noxious stimulus or a pain transmission anomaly, nor is it secondary to a demonstrable underlying psychiatric structural illness. It has a mechanism similar to hallucination, dream, or has roots in the psychological developments of the individual. Psychodynamic model in the Freudian tradition and learning theory has been proposed to explain this disorder, but both remain speculative. It is also suggested that psychogenic pain could be merely a highest response to somatic pain seen in the certain predisposed individual, and therefore may not need to be
considered a separate entity. It is prolonged and severe and inconsistent with anatomical disturbance of the nervous system. The onset of the psychogenic pain disorder is related to the environmental stress. So we can say that the psychological pain is clearly marked to the original organic pain, and the main feature of psychological pain is painful behavior or sick role. If the patient has adopted the sick role and pain has become a behavior rather than a symptom, the following features start to determine the intensity, types and location of the pain: function abnormalities, overuse of medication, sleep disturbance, decreased social activities. The types behavior pattern in such cases is a new unhealthy lifestyle characterized by avoidance behavior on the fear of pain and reinforcement of passive learning. This involves the individual being in too much pain to work, study, indulging in physical activity but fine while watching TV, reading or including in other passive pastime. यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि पेशेंट जब भी स्ट्रेस लेगा, पेन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी. जैसे ही प्रेशर माइंड से रिलीज होगा, पेशेंट की ही रिलैक्सिंग कंडीशन में होगा, कहीं गेम कर रहा होगा, टीवी देख रहा होगा या वो काम कर रहा होगा जो उसके इंटरेस्ट का है, तो जो पेन है उसकी इंटेंसिटी पेशेंट महसूस नहीं करेगा. पेशेंट जैसे ही कोई एंशियस स्टेट या एंजाइटी की स्टेट बढ़ी, पेशेंट साथ ही जो पेन की सिम्टम है उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा. The aim of psychological management of pain is to make a thorough and methodological evaluation based on the approach discussed. First of all, at the time of pain, when patient explain, the physician has to take a detailed mental state examination कि पेशेंट जो है उस वक्त मेंटल कंडीशन क्या है, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या है, पेशेंट के साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स क्या हैं, तब वो उस पेन को रिलेट करता है उसके साथ. इसमें 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके ट्रीटमेंट में कि सबसे पहले पेशेंट की जो मेंटल कंडीशन है यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट. उसके बाद अगर साइकोलॉजिकली वो फिट होता है देन हम जाएंगे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की तरफ और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की तरफ. दीज आर द मेन मैनेजमेंट टूल्स फॉर साइकोलॉजिकल पेन. नाउ वी discuss one by one. These are psychological management tools. Number 1 is psychological assessment. Before starting the physical and organic treatment, the doctor should has to clear the or extract the psychological aspect कि पेशेंट जो है उसकी साइकोलॉजिकल जो मॉर्बिडिटी है, जो उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन है, उसको सबसे पहले उसको क्राइटेरिया से निकालना है कि पेशेंट के साथ साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, वो जो कंडीशन है वो प्योरली फिजिकल है. अब इसमें जो मेन चीज़ है उसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट में वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्टैब्लिश द प्राइमरी कॉज ऑफ द पेन. इज द पेन ऑर्गेनिक और अ सिम्टम ऑफ अ साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी और प्राइमरी psychogenic in origin. Define the exact role of psychological factors, psychodynamic or cognitive, in the clinical scenario. Are they etiology, precipitating or perpetuating in their influence? Make an assessment on the various environment factor, interpersonal, social, occupational, economic and cultural as the determinants of पेन सोमेटाइजेशन. यानी कि सबसे पहले जो उसके तीनों फैक्टर हैं, प्री डिस्पोजिंग, परपेचुएटिंग एंड प्रेसिपिटेटिंग. दीज आर द 3 मेन फैक्टर विच इंक्रीज, डिक्रीज, क्रॉनिक और acute definition of the pain. First of all,
प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, व्हाट इज प्री डिस्पोजिंग फैक्टर? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पेशेंट पहले ही ऑलरेडी उस चीज़ के जर्म्स रखता है कि ज़रा सी पेन हुई उसको एग्जैजरेट करना शुरू कर देता है, या पहले से ही उसमें कोई ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेड है जो उस पेन को क्रॉनिक रूप में ज़ाहिर कर रही है। उसके बाद प्रिसिपिटेट कि कोई ऐसा फैक्टर तो उसके साथ नहीं परपिचुएट कर रहा, कोई ऐसा फैक्टर तो इंटरवीन नहीं कर रहा जिसकी वजह से ये पेन पे हो रही है, या कोई ऐसा फैक्टर जो परपिचुएट यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट पेन को प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो ये 3 फैक्टर जो हैं ये जो उसे डिटरमिन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है पेन को ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो इन तीनों फैक्टरों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट जो है वो हम जो है वो उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद इसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इसके ऑक्यूपेशनल, सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिकल स्ट्रेसर हैं, उनको भी ज़हन में रखना पड़ता है। उसके बाद जो सेकंड मैनेजमेंट टूल है वो है ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा जो टूल है ड्रग में यूज़ करना है। एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करने हैं, पेन किलर यूज़ करने हैं, एंटी साइकोटिक यूज़ करने हैं, या एंटी एंजाइटी हमें मेडिसिन की तरफ जाना है। उसके बाद साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग की टेक्निक्स है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ हैं, सोशल स्किल ट्रेनिंग है, असर्टिव ट्रेनिंग है, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ है। तो वन बाई वन इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह पेशेंट को सबसे पहले रिलैक्स करना है। यूजिंग दिस मस्कुलर बायोफीडबैक, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, cognitive relaxation and cue control relaxation, the muscular tension is brought under control, thereby breaking the pain cycle. Then opening technique used. These are based on learning theory and aim to identify the problems and modify an individual response to the problem. Techniques include activity training, meditation, reduction and activity focus on functional disability. These techniques result in decreased disability level and fear and improve physical fitness and body image. These steps include measuring the baseline level, select targeting activity, starting with simple activity and move on to complex ones. Gradually increase the activity level, reinforcing the activity by providing feedback and verbal praise, checking progress and modifying the target and necessary, selecting a new activity once the first activity has been accomplished. Operant conditioning are also used in medication reduction training in chronic opioid use. The drugs are dispensed use a time congenital rather than a pain contingental treatment techniques. This improves pain relief, decrease pain behavior and has a decreased addictive potential. In this technique, the medication is provided at regular time intervals rather than pain intensity. The dose is then systematically reduced. तो इसमें नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है वो कॉग्निटिव टेक्निक्स है. कॉग्निटिव स्ट्रेटजी एम्स एट पेन मैनेजमेंट, फोकस ऑन डीलिंग विद स्ट्रेस, modifying pain related cognition. This involves the stress oriented techniques like relaxation therapies and cognitive techniques such as imaginative intentions, यानी कि पेशेंट को वो चीज़ें, वो थॉट्स इंड्यूस करें जो रिलैक्सिंग हो. उसकी जो कॉग्निटिव फोकस हुई है पेन की तरफ, उस पेन के फोकस को डिस्ट्रैक्ट करें. उसमें पेशेंट को रिलैक्स करके इसे ऐसे इन्वायरमेंट में लेके जाएं जो पेन फ्री हो, जो उसके लिए फेवरेट हो, जिसमें वो खुद को सेफ फील करे. उसके बाद उसकी अटेंशन डाइवर्जन मेथड है. अटेंड इन डाइवर्जन टूवर्ड एन अदर इंगेज टास्क
काउंटिंग और रीडिंग के पेशेंट का जो उसकी फोकस है, अटेंशन है, उसको डाइवर्ट करें। उसके बाद सोशल स्किल एंड असर्टिवनेस है। सोशल स्किल ट्रेनिंग फोकस ऑन इंक्रीज सोशल एक्टिविटी एट वर्क एट होम। असर्टिवनेस ट्रेनिंग इज सिमिलर बट फोकस मोर ऑन कम्युनिकेशन स्किल। इट enhance क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिड्यूस पेन रिलेटेड स्ट्रेस। उसकी ये जो बात का पेशेंट जो अपना इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी फीलिंग को जो दूसरों तक पहुंचा नहीं पाता, जो वो पेन है, जो वो उस रिप्रेशन का प्रॉब्लम्स है, वो फिजिकल पेन की सूरत में पेशेंट एक्सप्लेन करता है। अगर पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जो साइकोलॉजिकल पेन है, वो रिलीव हो जाए तो पेशेंट ऑटोमेटिकली फिजिकल पेन को ख़त्म कर देगा, जो फिजिकल एक्सप्लेनेशन है उसको ख़त्म कर देगा। उसके बाद कोपिंग स्ट्रेटजी अप्रोच है। दिस फोकस ऑन द पेशेंट इंटरपर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेशेंट प्रॉब्लम एंड वेरियस कोपिंग मेथड। पेशेंट विद क्रॉनिक पेन सिंड्रोम यूजुअली यूज passive methods of dealing with pain such as hoping pain will go away. Coping skill training identify methods of dealing with pain. Belief about pain and resulting disability relaxation and activity program can later be added to the plan. तो इसमें पेशेंट की जो एक्टिविटी है उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, देन टू कम डेली एक्टिविटी लाइफ। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पेशेंट की डिस्ट्रैक्शन है। पेशेंट का जो कॉग्निशन एक पेन पे फंसा हुआ है, फिजिकल पेन को, उसको हम शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ ताकि पेशेंट अपनी पेन को ख़त्म कर सके, अपनी पेन को रिलीफ फील करे। उसके बाद मेडिकेशन रिड्यूस ट्रेनिंग है फ्रॉम पेन कॉन्टीन्यूटी रिडक्शन, यानी कि पेन जो है वो पेशेंट पेन से रिलैक्स लेने के लिए जो डिफरेंट मेडिसिन है उनकी कॉकटेल यूज़ करना शुरू कर देता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते हैं कॉग्निटिव लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब उसके बाद उसकी डीलिंग करते हैं, उसके स्ट्रेसर को हम टारगेट करते हैं जो उसकी कॉग्निशन को रिलैक्स कर देती है। ऑलरेडी वो डिस्कस असर्टिव ट्रेनिंग कि वो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाए, अपनी जो थॉट्स है उसको दूसरों तक पहुंचाने में उसको रिलैक्स फील करें। तो जो हमने यहाँ पॉइंट अगर हम सारी इस पेन मैनेजमेंट को हम समराइज़ करें तो इसमें चंद एक पॉइंट हैं जो देखने पड़ते हैं किसी भी पेन के पेशेंट को जिसका कोई हमें लेबॉर्ट्री फाइंडिंग नहीं मिलती कि एट द टाइम ऑफ पेन उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, उसकी सोशल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है। तब हम डिफाइन कर सकते हैं कि पेन जो है वो साइकोलॉजिकल है कि फिजिकल। इन मोस्ट केसेस साइकोलॉजिकल पेन गोन व्हेन द स्ट्रेस रिड्यूस और वैनिश। थैंक यू वेरी मच।